Hello dear students, once again a very special welcome to all of you in the lecture series. In the third lecture we have done with some types of chemical reaction in which we discussed combination, displacement reaction, double displacement reaction and decomposition reaction, and we have already discussed few examples of that particular type of reactions. And in displacement reaction we have discussed three type of this chemical reaction. In displacement also specifically, that is thermal in decomposition reaction, that is thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolytic decomposition. Okay, so we have left with 2 or 3 more type of chemical reactions. So today we are going to discuss that, and we are trying to conclude this particular unit with that particular types of reaction. In the last we are going to discuss some more about corrosion and rancidity. That's our the application of oxidation in our daily life. So let's start. Yesterday we have completed or concluded our topic with double displacement reaction, in which I have given you an example like this: barium chloride plus sodium sulfate giving rise to barium sulfate plus sodium chloride. We already told you how to balance a chemical equation. Please go on trying each and every question in your book. There are a lot of questions given on how to balance a chemical equation. So this was the reaction we have written in double displacement reaction. So in this reaction, what is going to form? This is aqueous solution. That means this is a solution in water. This is sodium sulfate solution in water. But what is forming here? This is a solid, an insoluble solid. Barium sulfate, which is forming in this particular reaction, is an insoluble solid emerging from two liquid solutions. On reaction of two mixed liquid solutions, I can say two aqueous solutions, we are getting an insoluble solid. That particular solid is known as precipitate, and these type of reactions are known as precipitation reaction. So let's define precipitation reaction. I'm going to write it here so to make you understand better. Those reactions in which an insoluble solid is formed from aqueous solution, those reactions are known as precipitation reaction. And this is a specific example of precipitation reaction. One more example is there, and that example is, I have already given that example to you in the previous lecture. BaCl2 plus aluminum sulfate Al2SO4 का thrice giving rise to barium sulfate plus aluminum chloride. See, this reaction is also an example of this precipitation reaction. Okay, this is a precipitate forming here. This is also precipitate. In chemistry, you are going to find this and this. This is a symbol of gas and this is a symbol of precipitate. Whenever you are going to find this symbol behind this, अगर आपको this is not a precipitate, this is the precipitate, ऐसा लिखा होगा या ऐसा बनाया होगा, तो that means a precipitate is formed. An insoluble solid has emerged from a liquid solution, that is known as precipitate, और उसका symbol ऐसे आप बना सकते हो बेटा. आपके books में भी you will be finding this symbol over there again and again. That is the symbol of a precipitate, and this type of reaction is known as precipitation reaction. आपके book में एक question है, शायद ये वाला example आपके book में दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि और एक example दीजिए on the basis of precipitation reaction or on precipitation reaction in fact. So you have to write this example over there. So this is one more question, and I have seen this question again and again in your examinations. That's why I am going to give you. मैंने आपको ये बता दिया बेटा, ये आप देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है. ठीक. So and the next type of reaction, that reaction is very much important, very much important, because that reaction you will be having in up to your MSc. See, that reactions are oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction. Oxidation reaction and reduction reaction, we are going to define these two reactions in terms of 3 components. First is addition or loss of
oxygen or hydrogen, and the third one is addition or loss of electrons. See, first of all, I am going to define oxidation in three terms. You can define oxidation reaction as in three ways. First is addition of oxygen. This is called oxidation reaction. First definition. You will be having three definitions of both oxidation and reduction. You have to correlate that. Addition of oxygen is known as oxidation. आप ऐसे भी लिख सकते हो, addition of oxygen to any substance is known as oxidation. So we are going to, yeah, okay, it's oxidation. So example is Mg plus O2 2 MgO. What's happening here, beta? Magnesium was all alone here. It's getting oxidized by joining with oxygen. देख लीजिए पहले magnesium यहाँ पे अकेला था, अब magnesium के साथ कौन जुड़ गया? Oxygen जुड़ गया. That's what's happening. Addition of oxygen is happening here. That's why this reaction is known as oxidation reaction. We said first definition of oxidation reaction is addition of oxygen. Whenever you are finding that oxygen is getting added to a substance, that is definitely an oxidation reaction. So this example is oxidation because oxygen is added to magnesium, forming magnesium oxide. That's why this reaction is called addition reaction. Sir, क्योंकि oxygen magnesium के ऊपर add हो रहा है, तो इस टाइप के reactions को whenever there is addition of oxygen, we call that as oxidation reaction. Okay. The second definition, this definition is also of oxidation reaction, बेटा. Removal of hydrogen को भी हम oxidation reaction कहेंगे, बेटा. Removal of hydrogen. Sorry. Removal of hydrogen from any substance is also oxidation. याद रखिएगा सर, बहुत ज्यादा जरूरी है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. सर कैसे? आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल, प्लीज नोट डाउन. इसको नोट डाउन करिएगा बेटा. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके कैसे कहेंगे बेटा इसको ऑक्सीडेशन? देख लीजिए. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 twice of HCl plus sulfur. Is it? What's happening in this reaction? सल्फर के साथ कौन जुड़ा था? हाइड्रोजन is already with sulfur and here sulfur is all alone. That means hydrogen is being removed in this particular reaction from sulfur. सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन सल्फाइड बनके SuLPHID. Remember this? This is sulfide. Hydrogen sulfide, you already know. This particular compound hydrogen sulfide is a specific and distinguishing smell of rotten egg. आपके घर में LPG गैसेस होते हैं बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जब भी आपका गैस लीक होता है तो आपको स्मेल आता है. That is the smell of CNG, LPG? No sir. That is the smell of this particular thing, hydrogen sulfide. आपके घरों में जो डोमेस्टिक गैस चलते हैं उनमें आपके LPG गैस के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया जाता है. उसका एक डिस्टिंग्विशिंग और रोटन एक टाइप स्मेल होता है. जो आपके घरों में गैस को बू आता है वो इसका स्मेल है हाइड्रोजन सल्फाइड का, न कि LPG का. तो आपको पता करने के लिए अगर LPG रिलीज होता तो आपको पता ही नहीं चलता अगर ये गैस उसमें साथ में नहीं भरा जाता. तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग फिल्ड इन डोमेस्टिक सिलेंडर्स विद LPG, सो दैट जब भी लीकेज होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी बाहर आएंगे साथ में. इससे आपको बहुत तेज पंजेंट स्मेल आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में गैस लीक हो रहा है. सो वी वर टॉकिंग ऑफ दिस ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है सर तो ट्वाइस ऑफ HCl प्लस सल्फर बन रहा है. इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे किसके टर्म में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. तो हो रहा है सर, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहां जाके सल्फर अकेला है, हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है. तो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एन एग्जांपल, आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके. एंड द थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, अभी ऑक्सीडेशन ही चल रहा है सर. ऑक्सीडेशन का पहला डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जब भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है. दूसरा डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जब भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन कहेंगे सर. हमने एग्जांपल देख करके देख लिया. तीसरा हम ऐसे लिखते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में OIL करके. ऑक्सीडेशन हम हमेशा
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहेंगे सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। देख लीजिए, मैं छोटा सा, आप ज्यादा इसमें बड़ा एग्जांपल मैं आपको नहीं दूंगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। चलो मैग्नीशियम देख लीजिए बेटा, जब भी मैग्नीशियम या सोडियम, चलो सोडियम आपको थोड़ा सही लगेगा, सोडियम जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देख लीजिए सोडियम Na++1 इलेक्ट्रॉन है ना सर। इसमें सोडियम को क्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करना है, तो व्हाट दे सोडियम यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम यूज्ड टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसमें क्या हो गया बेटा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दिस इज ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम ऐसे यूज करते हैं, रिक ऑयल in terms of electrons, oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron। देख लीजिए, oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron, but we are going to study reduction a little bit separately, so हम पहले oxidation के बारे में बात करेंगे बेटा। इसी तरह आपके मैग्नीशियम में भी देख लीजिए, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो Mg बाय पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। देख लो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। Whenever there is loss of electron, obviously you are going to call it oxidation reaction। 3 डेफिनेशन आपका ऑक्सीडेशन का हो गया सिर्फ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तीनों का हमने एग्जांपल आपको दे दिया सर, ठीक। नाउ ऑक्सीडेशन के बाद हम जाएंगे बेटा सीधे रिडक्शन पे। सी रिडक्शन में क्या होगा बेटा, रिडक्शन भी हम 3 टाइप से डिफाइन करेंगे बेटा। पहला उसका जस्ट रिवर्स होगा, उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस। इट्स कॉल्ड रिडक्शन। यस सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस इज नोन एज रिडक्शन। उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होते, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए बेटा, CH3CHO, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, हमने कार्बोनेटेड कंपाउंड में किया था। उस पे जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करके रिड्यूस करेंगे इसको, तो हमारा क्या बनता है, CH3CH2OH। क्या हाइड्रोजन ऐड हो गया सर इसमें, देख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देख लीजिए 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, कितना हो गया इस साइड में, 4 हाइड्रोजन टोटल है, इसमें 3 4 5 6। इसका मतलब उस साइड में क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। whenever addition of hydrogen is there, that type of reaction is known as reduction reaction। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इसका रिडक्शन रिएक्शन। इस एग्जांपल में देख लीजिए आप, जब भी किसी एल्डिहाइड में हमने हाइड्रोजन ऐड किया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, मीन जहां भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन को भी हम 3 टाइप से डिफाइन करेंगे। पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर देख लीजिए, देख लीजिए सर, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन। इसको भी हम रिडक्शन कहेंगे सर। उसका जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है बेटा। देख लीजिए CuO प्लस S, सॉरी CuO प्लस C गिव्स राइज टू Cu प्लस CO। ठीक है सर, देख लीजिए कॉपर के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन था, लेकिन यहां कौन है, अकेला कॉपर है, तो क्या हुआ, कॉपर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। देख लीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहां जाके ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो whenever there is removal of oxygen, that type of reaction is also known as reduction reaction। ये reduction reaction क्यों है सर, ये इसलिए है क्योंकि आपके कॉपर के साथ क्या हो रहा था, क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन। सो व्हेन ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, सो ऑक्सीजन जाके यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ reduction reaction where there is removal of oxygen is occurring over there। Okay, now the last type of last definition of reduction is again in terms of electrons। वो मैं कोरिलेट करके आपको बताऊंगा बेटा, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा।
देख लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, ठीक, ओके। द चॉक इज नॉट वर्किंग फाइन टुडे, सॉरी। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, reduction is gain of electron. Okay sir, whenever there is loss of electron you can call it oxidation, whenever there is gain of electron it's called as reduction. See, I already told you sodium is forming sodium positive by losing one electron, and chlorine is gaining one electron to form chloride ion, is it? ऐसे इसने सोडियम ने सोडियम पॉजिटिव बनाया, सोडियम आयन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, देख लीजिए सर, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ कैटेगरी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। व्हाई? सी, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए हमने बोला while दिस इज अ term to remember these things. This is only a concept to remember, not something a law or something like that. This is not a law. This is only while oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. You can remember it this way. See, when it loses electron, it's called oxidation. Chlorine, chloride बन रहा है एक electron gain करके, that's why reduction is going on over there. Okay, so we have defined oxidation and reduction in three terms. First in term of एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन, रिमूव हो रहा था तो रिडक्शन। हाइड्रोजन के टर्म में भी हमने पढ़ा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो रिडक्शन, रिमूव हो रहा था तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था तो ऑक्सीडेशन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको इसको अच्छे से समझना है, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन डू कंसल्ट अस किसी भी टाइम। हमने आपको पिछले लेक्चर में नंबर दे दिया था, आई होप यू आर रिमेंबरिंग दैट नंबर्स अगेन। अगर आपको कुछ है प्रॉब्लम तो मैं दोबारा लिख रहा हूं नंबर 8491957847, ये एक नंबर है, दूसरा 9797228843, ये भी आपका दूसरा नंबर। इस नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, वी आर रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। नाउ कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं बेटा, क्या इज इट पॉसिबल कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा अलग अलग से होगा? नहीं, ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, देख लीजिए सर, नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन लॉस होके कॉपर बन रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना सर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते थे? रिडक्शन। तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होकर कॉपर बन रहा है, लेकिन H2 में O ऐड हो रहा है बेटा, है ना सर? H2 अकेला था, O ऐड होकर वाटर बना है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऐसा भी रिएक्शन है सर। There are some types of reaction in which oxidation and reduction reactions are occurring simultaneously सर, दोनों साथ साथ में हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो किस कैटेगरी में आप इसको डालोगे, ऑक्सीडेशन में कि रिडक्शन में? नहीं सर, साइंटिस्ट ने एक नया टर्म निकाला, रिडॉक्स रिएक्शन। केमिस्ट ने एक नया टर्म निकाला, रिडॉक्स रिएक्शन। ये लीजिए सर, रिडॉक्स आ गया, रेड रिडक्शन से आया, ऑक्सीडेशन से आया। Those type of reactions in which oxidation and reductions are occurring simultaneously, those type of reactions are known as redox reaction. कोई पूछेगा सर क्या दोनों साथ में भी हो सकता है? सर ऑब्वियसली हो सकता है। ये वाला एग्जांपल उनको देख लीजिए, तो जिसमें रिडक्शन, देखो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। व्हेन both the reactions are occurring simultaneously, these reactions are known as oxidation, redox reactions, because these two types of reactions are occurring simultaneously. Redox, reduction and oxidation both are occurring simultaneously. Okay beta? Okay, so there is some applications of oxidation in our daily life. दो आपके बुक में दो टॉपिक दिया हुआ है, एक कोराइजन करके और दूसरा रैंसिडिटी करके, ठीक? कोराजन एंड रेंसिडिटी, इन दोनों में ऑक्सीडेशन होता है बेटा। दीज टूज आर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या क्या ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है या असर पड़ता है, उसके बारे में है। तो कोराजन पहले मैं डिस्कस कर लूं आपको,
What is corrosion? Formation of layer of oxide on metal surface when exposed to air, water, acid, etc., thereby weakening the metal. Thereby weakening the metal. रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना बेटा? हाँ जी सुना. देख लीजिए, जब भी आपके मेटल की लेयर पे ऑक्साइड फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्साइड फॉर्म होगा ऑब्वियसली. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बोला था. तो जबकि मेटल की लेयर पे ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो या एयर के प्रेजेंस में होता है या वाटर के प्रेजेंस. आप जब भी कोई मेटल का चीज बाहर फेंक के रखते हैं, आयरन का चीज मान लीजिए आप बेटा, तो उसको किसी 1-2 दिन के बाद या 5-10 दिन के बाद रस्टिंग हो जाता है, तो वो हो रहा है कि ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है उसके लेयर पे. तो जब भी वाटर, एसिड या एयर के प्रेजेंस में कोई मेटल आता है, तो उसके लेयर पे एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म होता है, सॉरी उसके सरफेस पे, जिसकी वजह से वो मेटल वीकनिंग हो जाता है, कमजोर हो जाता है. इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोराइजन बोलते हैं बेटा. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल. So blackening of this copper etc. is also, sorry, greening of copper is also an example. तो ये सारा कोराइजन में आता है, जिसमें मेटल का सरफेस वीकन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. कोई आपको एग्जांपल बोलेगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल, जिसमें रस्ट बन जाता है. दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट. सी Fe2O3.XH2O. कोई आपसे पूछेगा सर केमिकल रस्ट का मुझे केमिकल फार्मूला बताइए, तो Fe2O3.XH2O. दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट. जब ये बनता है, देखो ऑक्साइड बन रहा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो दिस इज कोराइजन एंड रस्टिंग वगैरह उसका एग्जांपल है बेटा. उसके बाद आता है ग्रेन्सिडिटी. आपने कभी चिप्स खाया होगा, तो उस चिप्स में कुछ हवा भरा क्या होता है बेटा? समथिंग इज फिल्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. आप क्या बोलते थे उन चीज को? दैट इज नॉट ए गैस फिल्ड टू मेक यू फाइंड दैट पर्टिकुलर पैकेट लिटिल बिट बिगर. आपको लगता है सर इसमें तो फूक भर के कंपनी वालों ने बड़ा बड़ा बना दिया. दिस इज नॉट सो सर. उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि उसमें ऑक्सीजन ना घुसे. अगर ऑक्सीजन घुसता तो उसमें ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड होगा. उसमें तेल वगैरह होता है ना सर, जो आपके चिप्स कुरकुरे वगैरह में सब में ऑयल होता है, तो वो ऑक्सीडेशन होके रैंसिड हो जाएगा, उसका टेस्ट स्मेल सब खत्म हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे. दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. ऑक्सीडेशन ऑफ oils and fats containing foods leading to bad smell and taste. This is called rancidity बेटा. आपके लेस कुरकुरे के पैकेट में ऑलरेडी ऑयल कंटेनिंग फूड्स है. जब नाइट्रोजन उसमें से निकल जाएगा, अब उसको प्रिक करिएगा, उसमें से गैस निकलेगा. दैट इज नॉट ऑक्सीजन गैस जो उसमें भरा हुआ है. फ्लश करके ऑक्सीजन सारा बाहर निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है. जब उसमें ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? क्यों? ऑक्सीडेशन इज ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इज इट? तो क्या होगा? जब ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उसका स्मेल, टेस्ट सब खराब हो जाता है. अब बीमार भी हो सकता है उस चीज से. सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं बेटा. ठीक से देख लीजिएगा. आपके चिप्स के पैकेज है, वैसे आपको समझ आ जाएगा ज्यादातर, क्योंकि यू आर यूज्ड टू दैट पर्टिकुलर चिप्स, कुरकुरेस एटसेट्रा, मेडेंगल, बिंगो एटसेट्रा. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय सम पैकेट ऑफ लेस एटसेट्रा फ्रॉम योर मार्केट, प्लीज बाय दैट पैकेट जिसमें हवा भरा होगा. कंपनी आपको बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना रहा है. बेवकूफ अगर बनाना होता तो किसी और तरीके से बना सकते थे, फूक मार के, इतना ओपनली नहीं. तो उसमें जो गैस भरा हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन गैस, only to give you protection against oxygen. Oxygen is very good for you, but that particular oil containing food does not like oxygen. Sorry, अगर ऑक्सीजन उस पैकेट में घुस गया होगा, जैसे कुछ पैकेट्स ऑलरेडी खराब होते हैं बेटा, उसमें से ऑलरेडी उसमें से हवा निकल गए होते हैं, तो दैट पैकेट इज वेरी डेंजरस फॉर यू. एक तो उसका टेस्ट खराब होगा ही होगा, उसका स्मेल भी कुछ अजीब सा होगा, लेकिन विद दैट इट कैन क्रिएट सम हेल्थ प्रॉब्लम टू यू, बिकॉज ऑलरेडी उस ऑयल कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन हो चुका है. तो वो क्या कर सकता है? आपके हेल्थ को बीमार कर सकता है. तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय अ चिप पैकेट,
तो आप क्या कर लीजिएगा, जो हवा भरा हुआ लाइएगा उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ है तो ऑक्सीजन नहीं जा सकता, इसलिए वो फूड अभी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, इट्स सेफ फॉर यू टू कंज्यूम वेरी इजीली। आपके बुक में बार बार एक क्वेश्चन आता है और एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई पैकेट्स ऑफ चिप्स are flushed with nitrogen gas, या why packets of foods containing oils are flushed with nitrogen gas। वहां आपको लिखना है packets of foods containing oil and fats are flushed with nitrogen। फ्लश मतलब क्या होता है, पहले ऑक्सीजन को बाहर निकालना फिर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देना। पैकेट्स ऑफ foods containing oil and fats are flushed with nitrogen in order to prevent oxidation of that particular oils and fats containing food, in order to prevent it from getting towards bad smell and bad taste, and which can also lead to bad health, is it? So these two are example of oxidation in our daily life. This is very important. So rancidity बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड, तो इसीलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो आपका ऑक्सीजन नहीं घुसे आपके पैकेट में, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए उसका। सो कोराइजन में भी आपने बोल दिया आपको, यू कैन रीड इट इन मोर डिटेल्स। इफ स्टिल देयर इज टू मेनी क्वेश्चंस विद यू, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ टॉपिक, you can ask anytime, anywhere. There are 2 numbers mentioning over there, beta. I know in the previous unit we are getting a lot of feedback from your side. Thank you so much, and keep reading in the same way, keep working hard in the same way. In the few more days we are coming up with some new topic and a new unit. Till that, take care, have a nice day.